السلام علیکم۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے اور یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے چاند دیکھنے کا کہ چاند آج ہوا ہے، چاند کل ہوا ہے، یا کس دن روزہ رکھنا ہے، صبح رکھنا ہے یا پرسوں رکھنا ہے یا کل رکھنا ہے۔ تو یہاں آسٹریلیا میں سڈنی میں خاص کر ہمارے دو کمیونٹی بڑے گروپ ہیں، ایک عرب کمیونٹی ہے جس کو لیبنیز ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایک کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی جس کو ڈاکٹر شبیر صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو دونوں کا موقف یہ ہے کہ جو لیبنیز کمیونٹی ہے وہ کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اور جو ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں یہ فالو کرتے ہیں، چاند دیکھ کر اسٹارٹ کرتے ہیں، اور چاند مون سائٹنگ ان کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ چاند دیکھنا ہے تو پھر ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی ہم نے روزہ کا ختم کرنا ہے، رمضان ختم کرنا ہے۔ اچھا، اب دونوں کے اوپر ہم آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ لکمبا میں یہ مسجد ہے، اس کو لیبنیز کمیونٹی جو ریپرزینٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ مسجد قباء ہے، یہ پاکستانی کمیونٹی یہاں ہوتی ہے، یہ روٹی ہل میں ہے، اور اس کو ڈاکٹر شبیر صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیبنیز کمیونٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند بورن ہو گیا تو اس دن وہ روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر چاند رات کو یعنی کہ 2 بجے بھی، رات کے 2 بجے بھی بورن ہو جائے تو وہ اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، مگر ڈاکٹر شبیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاند جو ہے نا، جو مغرب کے بعد آپ چاند دیکھو، اگر چاند نظر آئے تو روزہ سٹارٹ کرو کیونکہ تراویحیں وغیرہ پڑھنی ہوتی ہیں، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر ہم اگلے دن پہ ہی چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کے لیے ہم یہاں آسٹریلیا میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹر صاحب پرس تک جو ہے نا، پرس یہاں سے سڈنی سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یعنی کہ تقریباً جو ہے نا 4,000 کلومیٹر دور بن جاتا ہے، دو تین دو سے 3 سے 4 ہزار کلومیٹر دور ہے۔ تو پرتھ میں جو ہے نا وہ اگر وہاں سے چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے تو پھر بھی روزہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رکھ لیا جائے، یعنی کہ ان کا دار مدار چاند دیکھنے پر ہے۔ اچھا، اب جو لیبنیز کمیونٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رات کو 2 بجے بھی چاند بورن ہو گیا تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب چاند بورن ہو گیا لہٰذا ہم جو ہے نا وہ اس رات کو پہلی رات کاؤنٹ کریں گے۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو لیبنیز کمیونٹی ہے وہ رات کو 12، وہ انگلش کیلنڈر کو جو ہے نا وہ فالو کرتی ہے، جو کہ رات کو 12 بجے دن سٹارٹ ہوتا ہے، مگر اسلامک کیلنڈر جو ہے نا وہ تو چاند کے حساب سے ہوتا ہے کہ چاند دیکھا تو رات ہو گئی اور اگلا دن جو ہے نا وہ چاند کے حساب سے سٹارٹ ہوگا۔ تو کیونکہ جب اور یہ پہلے یہاں ہوتا بھی یہی تھا کہ آپ مغرب کے بعد چاند دیکھو، اور چاند دیکھنے کے بعد عشاء پڑھو، اور لوگ سو جایا کرتے تھے، پھر صبح تہجد کے ٹائم اٹھے، تہجد پڑھی، نماز پڑھی فجر کی، اور پھر اگلے دن جو ہے نا وہ روزہ چاند دیکھ کے تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں، اگر رات کے 12 1 بجے بھی 2 بجے بھی کہیں سے تو اطلاع مل جائے، بلکہ اطلاع کیا، وہ سائنس کو فالو کرتے ہیں، وہ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، چاند کی موومنٹ کو سرچ کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آپ کو بتا دیتا ہے کہ چاند کتنے بجے جو ہے نا وہ بورن ہوگا، اور کتنے پرسنٹ بورن ہوگا، کتنے پرسنٹ بورن نہیں ہوگا۔ تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چاند جو ہے نا، آپ سائنس سے اس کی مدد لو، اگر آپ گھڑیاں دیکھ کے سارا باقی کیلنڈر بناتے ہو کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر جو ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے، اتنے منٹ کے اوپر اذان رکھنی ہے، اتنے منٹ اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہم نے فجر پڑھنی ہے، یا ظہر پڑھنی ہے، یا عصر پڑھنی ہے، یا عشاء پڑھنی ہے، تو یہ سارا جو ان کا اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ سائنس کو کیوں نہیں فالو کرتے؟
मगर दूसरा जो ग्रुप जो मून साइटेड वाले हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम चाँद, जो रेजिस्ट करते हैं कि हम चाँद को ही देख के जो है ना वो करेंगे, अपना रोज़ा स्टार्ट करेंगे, चाँद को ही फॉलो करेंगे, वो देखने पे डिपेंड करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम भी साइंस को ही फॉलो करते हैं, और साइंस ने ही ये बता दिया कि रात को 2 बजे अगर वो बॉर्न चाँद हुआ है और वो इतना बारीक है जो आँख नहीं देख सकती, और फिर उसको हम जो है ना वो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि देखने की शर्त है। तो जब और फिर रात जागने तक 1-2 बजे तक जो है ना वो किसने कहा है कि आप जागते रहो, और जाग के तो रात को 2 बजे बॉर्न हो गया तो आप उसको मतलब को फॉलो करो। सीधा सिंपल जो है ना वो फॉलो करो आप। सिंपल सा इसका तरीका है कि मगरिब के बाद चाँद देखो, थोड़ी देर देखो, अपने उफ़क़ पे देख लो, यानी ऑस्ट्रेलिया का उफ़क़ पर्थ तक बनता है। पर्थ या उधर डार्विन तक या इधर तस्मानिया नीचे को, तो ये वक़्त बनता है। यहाँ से अगर आपको इत्तला मिल जाती है कि चाँद देख लिया तो हम ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर जो है ना रमज़ान भी करेंगे, उसी के ऊपर रोज़ा स्टार्ट करेंगे, उसी के ऊपर तरावियाँ पढ़ेंगे, उसी के ऊपर जो है हम ये करेंगे, ईद भी उसी के ऊपर करेंगे। तो ये 2 ग्रुप जो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एक कैलेंडर फॉलो करने वाले और एक मून साइड। इसीलिए जो है ना वो हर साल इसको 2 ईदें यहाँ होती हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये नकम्बा मस्जिद है, ये कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ये लेबनीज़ कम्युनिटी है, ज़्यादा लेबनीज़ कम्युनिटी हैं, और कम्युनिटीज़ भी हैं मगर अरब को रिप्रेजेंट करते हैं। अरब के जो है ना वो लोग हैं इसमें, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इधर लकम्बा में इसी को ज़्यादा वो फॉलो, ये कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये कुबा मस्जिद है, इसके साथ ही एक और रोटियर की बड़ी मस्जिद है। ये दोनों मस्जिद पाकिस्तानी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, और ये इसको डॉक्टर शबीर साहब जो है ना वो फॉलो करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए, ये हमारा, मैं थोड़ा-सा इसको आगे कर लूँ, ये हमारा ग्लोबल मैप है। अच्छा, ग्लोबल मैप में हम जब इसको देखते हैं कि ये आपको नीचे ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया, ये ऊपर दुनिया, हम इक्वेटर से नीचे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा यहाँ पे जो है ना वो चाँद देखने की कोशिश कर रहा है, और ये चाँद जो है ना वो बॉर्न हुआ है, तो उसको ये चाँद किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ सकता क्योंकि वो नीचे है, और वो है भी पहले दिन का चाँद, वो कभी भी किसी सूरत में भी वो नज़र नहीं आएगा। अगर ये रात के 2 बजे भी बॉर्न हो गया तो ये नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रात के 2 बजे बॉर्न हुआ है तो वो तो रात को इशा पढ़ के लोग सो जाते हैं, तो उससे जो है ना मतलब कि उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मगर जो लेबनीज़ कम्युनिटी है वो कहती है कि नहीं, बॉर्न हो गया रात के 2 बजे भी बॉर्न हो गया, उसको काउंट कर लो। तो अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये देखें, अब ये दूसरे दिन का चाँद है। दूसरे दिन का चाँद है, फिर यहाँ पाकिस्तानी जो हमारी कम्युनिटी है वो फिर हमारे जो पाकिस्तानी जो लोग हैं या हमारे जो नुमाइंदे हैं, जैसे कि डॉक्टर शबीर साहब हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को, तो वो फिर कंप्लेंट करते हैं कि देखें जी चाँद तो बहुत बड़ा है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा दूसरे दिन का चाँद बहुत बड़ा है, और ये ऑस्ट्रेलिया से जो इसको नज़र भी आ जाता है। अब यहाँ इसके चाँद के बड़ा होने की बड़ी वजह यही है क्योंकि जब अगर रात के 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे भी चाँद बॉर्न हो गया, तो यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वो चाँद 16 या 17 घंटे का हो जाता है, तो वो ज़ाहिर है बड़ा ही नज़र आना है। तो उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अगर चाँद बड़ा नज़र आता है, तो इससे वो ज़ाहिर है इसने बड़ा ही नज़र आना है, मगर वो चाँद देख के हमने उसको रोज़ा रख लिया, और चाँद देख के हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी फ़ॉलो कर लिया, और हमें इत्मीनान भी हो गया कि हमने जो है ना उसी सुन्नत पे अमल किया है, और हमें अगर वो दूसरा रोज़ा छोड़ने की या रोज़ा मतलब कि कज़ा होने की भी जो है ना वो खतरा नहीं रहा। तो ये इस तरह ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये आपको ये चाँद इस वक़्त ये आपको 2 तरीका बड़ा नज़र आएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया में खड़े होके जब आप यहाँ से देखेंगे तो ज़ाहिर है ये आपको दूसरे दिन का चाँद बड़ा नज़र आएगा। और अब ये देखें, ये जो हम
मतलब कि पहली तारीख का अगर वो चाँद है, अगर वो रात के 12 या जो कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो कहते हैं जी रात के 12 या 1 बजे अगर ये बोर्न हो गया तो इसको आप फॉलो कर लो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये चाँद नज़र ही नहीं आया तो आप किस तरह जो है ना वो रोज़ा आप छोड़ सकते हैं? मतलब कि रात के 12 बजे या 1 बजे तक आपको किसने कहा है कि यार जागते रहो और देखते रहो कि 12-1 बजे अच्छा अब वो कहते हैं कि नहीं साइंस को फॉलो करो। अब साइंस ने ही ये बताया है कि ये 12 बजे बॉर्न हो रहा है और वो आप उस गूगल के ऊपर सर्च करके देखें तो वो चाँद की मूवमेंट को देखें तो वो बता देता है कि इतने बजे बॉर्न हुआ है और इतने परसेंट इसकी विजिबिलिटी है, आप इसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो हर चीज़ जो है ना वो बता दिया है, वो तो और ईज़ी हो गया है हमारे लिए जो कि सुन्नत को फ़ॉलो करना चाहते हैं। और वो लोग जो कैलेंडर को फ़ॉलो करते हैं, अब यहाँ आपके वो कैलेंडर को फ़ॉलो करेंगे मगर फिर वो तरावियाँ किस तरह रात को पढ़ेंगे? अगर रात के 12 बजे या 2 बजे बॉर्न हो गया तो वो तरावियाँ भी नहीं पढ़ सकते और जो है ना वो इसको आगे वो लोगों को ऐलान करता है, बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, लोगों को बताना होता है। लोग मुख्तलिफ़ जगह पे रहते हैं, यहाँ सब लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं, दूर-दूर रहते हैं, तो वो मतलब कि उनको रात को कैसे अब कोई सो गया होगा या कोई जाग रहा होगा, तो किस तरह आप उनको बता सकते हैं कि रात के 2 बजे जी चाँद बोर्न हो गया। तो इसका वो जो तरीका डॉक्टर शब्बीर साहब अपनाते हैं, मेरे नज़दीक वो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ऑस्ट्रेलिया की हद तक, जो पर्थ की हद तक, जो सिडनी में रहने वाले हैं, वो पर्थ की हद तक तो हम देख सकते हैं कि वो चाँद जो है ना वो हमें नज़र आ गया कि नहीं आ गया। और उसके बाद जो है ना यानी कि अगर मगरिब जहाँ आजकल 7 बजे हो रही है, तो पर्थ में ये मगरिब होती है 9 ओ क्लॉक, 2 घंटे का फ़र्क है। तो 9 बजे अगर वो चाँद नज़र आ गया, उस वक़्त तक तो इंतज़ार हो सकता है, क्योंकि इशा के बाद तक तो इंतज़ार कर मगर रात के 12-1 बजे तक इंतज़ार ना करने की वो ज़रूरत है, ना ही करना चाहिए। फिर आप रोज़ा रखें और वो लोग जो कहते हैं अगले दिन फिर वो कहते हैं जी देखें चाँद बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, ये देखें अगले दिन का चाँद जो है ना वो इतना बड़ा 2 का चाँद है, ये लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, मगर वो ये बिल्कुल नहीं समझते कि इस वक़्त तक ये जो चाँद है, ये 12 घंटे से ज़्यादा बल्कि 16-17 घंटे का चाँद हो चुका होता है, जो आपको ज़ाहिर है बड़ा ही नज़र आना चाहिए और बड़ा ही नज़र आता है। और मेरे नज़दीक जो है ना ये जो बेहतरीन तरीका और बेहतरीन अमल जो है वो उन्हीं का है जो कि मतलब कि चाँद को फ़ॉलो करके करते हैं, बजाय इस कैलेंडर को फ़ॉलो करने के चाँद को फ़ॉलो करते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है और इसी को फ़ॉलो करना चाहिए। और इसके सिलसिले में मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर शब्बीर साहब यहाँ जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को, इन्होंने ये किताब भी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में रोते हिलाल का मसला और इसमें इन्होंने सब फ़िक़्ह से और अहादीस से हवाला जात देते हैं। बड़ा अच्छी किताबचा है, बड़ी अच्छी किताब है, बड़ा अच्छा किताबचा है और जो हज़रात इसको लेना चाहें वो रोटी हिल में डॉक्टर शब्बीर साहब से भी राब्ता कर सकते हैं। उनका ये फ़ोन नंबर वगैरह भी पीछे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इस पे देख सकते हैं और उम्मीद है कि मेरी आपको ये काविश पसंद आएगी। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मेरा जो रुझान है वो डॉक्टर शब्बीर साहब के साथ ही है कि डॉक्टर शब्बीर साहब का तरीका बेहतरीन तरीका है, यही सुन्नत का तरीका है। दूसरा वो जो तरीका रात को 2 बजे या 1 बजे या 3 बजे जो चाँद बोर्न हो गया और उसको फ़ॉलो करते हैं, मेरे नज़दीक वो तरीका सही नहीं है। मगर मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं अपनी अपनी राय दे रहा हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मेरी तरफ से सब सिडनी में रहने वालों को, ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को सबको ईद मुबारक, पेशगी ईद मुबारक जो जो मून साइटेड वाले हैं उनको भी और जो कैलेंडर को फ़ॉलो करते हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक और दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। फिर अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।